हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत पानी ठीक ठाक? ओके, चलो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 की सब थियरीज खत्म कर दी। हाँ, फ्रॉम टुडे एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9.1। Just read the question carefully for 9.1. A structured steel rod has a radius of 10 millimeter and length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretch is along its length. Calculate stress, elongation and the strain on the rod. The Young modulus of the structure steel is given 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर रेडियस, लेंथ एंड फोर्स आर गिवन इन यंग मॉड्यूलस फॉर द स्टील इज आल्सो गिवन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट आउट द गिवन डेटा फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। Initially just write down the given data, from that we can get idea how to solve the numericals, whatever the things is asked for the calculation. Then the radius of the steel rod, matlab R is 10 mm. 10 millimeter means 10 into 10 raised to minus 3 meter. Therefore we can say it is 10 raised to minus 2 meter. Then length is given as a 1 meter and force given 100 kilonewton. Kilo means 10 raised to 3. Then it is ultimately 10 raised to 5 newton force. And Young modulus for the steel structure given 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. Ask about the stress. Elongation means increasing in the length, and last strain. Now for the stress we need area, the cross section area. The cross section area we can calculate from the radius. Initially we will calculate the area. Here cross section area E is equal to pi r square, means it is 3.14. R square 10 raised to minus 2 square means 10 raised to minus 4 meter square. Okay, now easily we can calculate stress. Then first of all stress we can say sigma is equal to F upon A. What is the force? It is 10 raised to 5 newton. Area 3.14 10 raised to minus 4. Then it is 10 raised to 9. Okay, then just divide 1 as a 3.14. 1 divided by 3.14, it is 0.319 into 10 raised to 9 Newton per meter square. You can say it is 3.19 10 raised to 8 Newton per meter square. This is the stress. Okay. Now about the elongation. Then phi, matlab second one, B, elongation. Elongation we can say delta L. Just use the formula for Young modulus. Using y is equal to FL upon A delta L. F upon A is the stress. Then you can write y is equal to sigma L upon delta L, because F itself sigma और sigma की वैल्यू हमें पता है. Okay. Then make subject delta L, sigma L upon y. What is sigma?
3.19 10 raised to 8. Length itself 1 meter, and Young's modulus for the steel 2 into 10 raised to 11. Then 3.19 divided by 2, it is 1.59. Then 1.59 10 raised to, ये ऊपर आएगा तो -11, it is -3, it is meter. Then 1.59 10 raised to -3 meter, you can write 1.59 millimeter. इन दोनों में से कोई भी लास्ट आंसर रखो चलेगा, बट आंसर के साथ यूनिट कंपलसरी होता है। कभी भी आंसर आएगा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो फिर हमें फाइंड करना है उसका स्ट्रेंथ। देन स्ट्रेंथ वी कैन से सिग्मा L इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। देन डेल्टा L, देखो L हमारा मीटर में है इसीलिए हमें ये यूज करना है। इट इज 1.59 10 raised to -3 upon 1, that is sigma L. और strain is unitless, तो जहां पर यूनिट नहीं है वहां पर नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो फिर मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, अब इसका हमें परसेंटेज में वैल्यू करनी है कि परसेंटेज चेंज इन द स्ट्रेन। देन तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो -1, मतलब इट इज 0.159%। अगर परसेंटेज पूछा है तो कर सकते हैं। 0.159 मतलब वी कैन से 0.16%। ओके, चलो नंबर 2। तो वीडियो पॉज करो और ये लिख लो पहले पूरा आंसर। चलो नंबर 2 क्या है? नंबर 2 के अंदर 2 वायर्स आर गिवन, one as a copper, another as a steel. The length is given for both. Okay, and diameter is same for the both, and they are connected end to end. When stretched by the load, the net elongation is found to be 0.7 millimeter. Obtain the load applied. मतलब अगर हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम हम कर सकते हैं। देखो डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर कॉपर को हम C से कर दे और स्टील वायर को S से लिखें और इसके नीचे हम लोड अप्लाई करें, इसका जो भी mg फोर्स लगेगा दैट इज F, वो हमें कैलकुलेट करना है। अप्लाइड लोड, दोनों का डायमीटर, रेडियस, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ओके, अब जैसे लोड लगा दिया दोनों की लेंथ में चेंज आएगा, देन नेट चेंज मतलब इसका जो चेंज आया इसमें जो चेंज आया, द नेट चेंज, नेट एलोंगेशन ऑफ द रोड इज 0.7 मिलीमीटर गिवन है। ओके, तो पहले जो भी हमें डेटा दे रखा है उसको लिस्ट आउट करते हैं कि कॉपर के लिए लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर, तो उसको हम लिखेंगे LC। कॉपर के लिए C सिंबलाइज करेंगे, इट इज 2.2 मीटर। फिर स्टील के लिए LS कर देंगे 1.6 मीटर। एंड यहाँ पर डायमीटर दोनों का सेम है, तो डायमीटर D से लिखे दोनों का सेम है, इट इज 3 millimeter. Then what about the radius? R is equal to D by 2, means 1.5 होगा millimeter में, therefore it is 1.5 10 raised to -3 meter, and total elongation is given. उससे पहले दोनों का यंग मॉड्यूलस लिख देते। देखो यहाँ पर यंग मॉड्यूलस गिवन नहीं है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे यंग मॉड्यूलस विल बी गिवन टू यू।
हाँ, एक ही केस में गिवन नहीं होगा। अगर पूछा है कि कैलकुलेट द यंग मॉड्यूलस, तब तो नेचुरली दिया ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरी कैलकुलेशन है और यंग मॉड्यूलस की रिक्वायरमेंट है, इट विल बी गिवन लाइक एग्जांपल नंबर 1, जैसे स्टील का दे रखा है ऐसे, है ना। तो दोनों का यंग मॉड्यूलस पहले लिख देते, उसका टेबल आगे है, उसमें से अभी लिख सकते हैं, एग्जाम में गिवन होगा। देन यंग मॉड्यूलस फॉर द कॉपर, देन यंग मॉड्यूलस फॉर द कॉपर इज 1.1 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and young modulus for the steel is 2 into 10⁻11 Newton per meter square. Now about the total elongation. तो total elongation मतलब क्या दे रखा है कि डेल्टा L for copper plus डेल्टा L for the steel is 7 mm. ओके, अब जो 7 mm है उसको कन्वर्ट कर दो, then डेल्टा LC plus डेल्टा LS 7 into 10⁻³ मीटर। इनसे ऐसे इक्वेशन नंबर 1, अगर किसी एक की वैल्यू हो गई हमारे तो दूसरी वैल्यू मिल सकती है। ओके, इतना डेटा गिवन है। चलो अब हमें फाइंड करना है इसका लोड F, लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं कि F is same for both, whatever the load is applied, it is applied for steel and applied for copper also. तो दोनों में लोड की वैल्यू जो है, फोर्स जो अप्लाई किया है, वेट जो है वो सेम है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हियर फोर्स अप्लाइड ऑन both the rods is same। और फॉर्मूला हम यूज करेंगे यंग्स मॉड्यूलस की, कैसे कर सकते हैं, यूजिंग y is equal to FL upon A delta L, just make subject F, then it is y A delta L upon L। ओके, अब ये तो सेम है, ऐसा बोल सकते हैं कि हियर FC is equal to FS, कॉपर और स्टील के लिए दोनों के लिए लोड जो हमने अप्लाई किया फोर्स है वो सेम, तो दोनों के लिए लिख देते हैं y फॉर कॉपर। देखो एरिया रेडियस सेम है दोनों का, तो एरिया तो सेम ही होगा, देन नो नीड टू राइट कॉपर एंड स्टील, ओनली A। देन डेल्टा L फॉर कॉपर, लेंथ फॉर द कॉपर, फॉर द स्टील young modulus for the steel area 7, it will be cancelled out, delta L for the steel and L for the steel। तो ऐसा कर सकते हैं डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS, मतलब इसको एरिया तो कैंसिल, चलो इसको ऐसे डिनोमिनेटर, तो ये आएगा न्यूमरेटर और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब YS अपॉन YC इंटू LC अपॉन LS। क्लियर? चलो देन डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS क्या हो, व्हाट अबाउट द यंग मॉड्यूलस फॉर द स्टील, इट इज 2 into 10⁻11। लेंथ फॉर द कॉपर, लेंथ फॉर द कॉपर इज 2.2। चलो यंग मॉड्यूलस फॉर द कॉपर 1.1 10⁻11, length for the steel 1.6, then 10⁻11 तो कैंसिल हो गया। What about delta LC upon delta LS, तो 10⁻11 कैंसिल, 2 into 2.2 divided by 1.1 and divided by 1.6, it is 2.5, तो ये हो गया 2.5। then we can say delta LC is equal to 2.5 times of delta LS, से ऐसे इक्वेशन नंबर 2, तो 2 की वैल्यू 1 में रख दे तो हमें स्टील की वैल्यू मिल सकती है, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1
क्या बोलेंगे, डेल्टा एल सी। तो डेल्टा एल सी की वैल्यू रख देते हैं, इट इज 2.5 डेल्टा एल एस, 2.5 डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻³ तो ये 2.5 प्लस 1 3.5 डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻³। then what about delta ls, 7 divided by 3.5 10⁻³ ओके। तो कितना होगा ये, 7 divided by 3.5 it is 2, तो 2 into 10⁻³ ओके, बोल सकते हैं मीटर। therefore what about delta LC, 2.5 टाइम्स, अगर 2.5 टाइम्स कर दे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो इन दोनों का एडिशन 7 हो गया ओके। अब दोनों में से कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं और यहां पर फोर्स की वैल्यू हम कर सकते हैं। जस्ट यूज डेल्टा एल फॉर कॉपर, तो फिर सभी कॉपर का यूज करना, स्टील का यूज करें तो स्टील यूज करेंगे। अब बोल सकते हैं ना F इज इक्वल टू, चलो Y फॉर द स्टील यूज करते हैं, देन स्टील एरिया तो वैसे सेम ही होगा, बोल सकते हैं हम πr² इनटू डेल्टा L फॉर स्टील एंड लेंथ फॉर द स्टील ओके। तो चलो सबकी वैल्यूज रख दे हम, हाँ वैल्यू तुम रखो, डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। व्हाट अबाउट द यंग मॉड्यूलस फॉर द स्टील, इट इज 2 इनटू पाई मतलब 3.14 इनटू r², तो ये हो जाएगा 1.52 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू डेल्टा एल एस 1.6 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस हमारे लिए है यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 1.6, इट इज 17.66 ऐसा आंसर होगा, कुछ चेक करना। और इनटू देखो यंग्स मॉड्यूलस में है 10⁻11 ओके, और ये -3 का स्क्वायर होकर -6 हो जाएगा, तो 11 - 6 करोगे इट इज 5, तो 10⁵ और 10⁵ और ये -3 भी है, देन 10⁵2 न्यूटन ओके। देख लो ऐसे, तो ये होगा -6, तो 11 - 6 मतलब 5 माइनस इसका 3 हो जाएगा तो 2, और जो वैल्यू मिलेगी वो एक बार कैलकुलेशन और कर देते हैं, हाँ कि 2 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू स्टील के लिए है 2 डिवाइडेड बाय 1.6, इट इज 17.66 ओके। चलो और अब यहां पर ये 11 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 6 और -3 हो जाएगा तो इट इज 2, तो 17.66 10⁻² न्यूटन ओके। तो इतना ऐसे लोड मिलेगा हमें, है समझ में, जिसको तुम एज ए या डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो इंटू 10⁻² न्यूटन। अब यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो हमारे लिए है कुछ 1.8 इंटू 10⁻² दे रखा है ना,
तो जो वैल्यूज है उसमें कहीं ना कहीं फर्क कुछ आया है कि नहीं, देख लो। ऐसे जो भी है वैसे हमारा आंसर बराबर है, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पर यूज किया है 7 mm। इट इज एक्चुअली 0.7 mm दे रखा है। देखो यहाँ पर एक जीरो की गलती हुई है ना। एक्चुअली इट इज 0.7 mm। तो देखो सब में थोड़ा बहुत ऐसे चेंज कर लो, इट इज 0.7 mm है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.7 mm। तो एक एक जो जीरो है यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा 0.2, 0.5, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.7। हाँ, यहाँ पर बाय मिस्टेक 0.7 की जगह पर मैंने ले लिया 7 mm। पहले से ही अब वापस करेक्शन कर दो कि इट इज 0.7, तो 0.7 10 to -3, बाकी ये सब वैल्यूज तो ठीक है। यहाँ पर 0.7 करोगे तो ये हो जाएगा 0.2, तो ये मिलेगा तुम्हें 0.5, और वापस तुम यूज करोगे तो 1.7, देन इट इज 1.8 into 10⁻²² न्यूटन। ओके, चलो नंबर 3, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर कर दे। चलो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 में एक ऐसा ह्यूमन पिरामिड बोल रखा है हमें, और ह्यूमन पिरामिड जो भी ऐसे स्ट्रक्चर डायग्राम में है कि जो पर्सन है वो सबसे नीचे है और उसके ऊपर सभी लोग जो है वो ऐसे ह्यूमन पिरामिड बना रहे हैं। तब जो भी पर्सन नीचे है उसके ऊपर सभी जो इसके प्लेयर्स है उससे फोर्स लगेगा, स्ट्रेच होगा, और उससे रिलेटेड में कुछ कैलकुलेशन करनी है। देन टोटल एज ए प्लेयर्स का मास दे रखा है कि जो भी वहां पर ऐसे थोड़ी बहुत जो भी वुडन यूज किया होगा या ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड टोटल मास इज 280 kg, और जो भी नीचे है पर्सन बॉटम पे उसका मास 60 है, तो उसके ऊपर सभी का मास लगेगा, मतलब उसकी खुद की वजह से तो उसका कुछ लेंथ में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। इसीलिए हम जो टोटल करेंगे तो जो भी मास हमें इंक्लूड करना है वो हम 60 kg माइनस कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर अगर तुम बॉटम पे हो तो तुम्हारा मास की वजह से कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी लोग हैं उसकी वजह से तुम्हारा जो बॉन्ड है उसमें कुछ फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स अप्लाई होने के लिए बाकी का हम मास कंसीडर करें, और फिर उसका कुछ ऐसे थाई बोन जो है उसका लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, उसका इफेक्टिव रेडियस दे रखा है, और पूछा हुआ है कि डिटरमाइन द अमाउंट विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। देखो एक्स्ट्रा लोड मतलब उसका मास नहीं, बाकी सबके मास की वजह से। ओके, तो लिख सकते हैं 9.3 में टोटल मास ऑफ परफॉर्मेंस लिखा हुआ है इज इक्वल टू 280 kg, और मास ऑफ परफॉर्मर is 60 kg। देन टोटल मास जो भी ऐसे सपोर्ट होगा एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ऐसे बोल सकते हैं हम टोटल मास एट बॉटम ऑफ पिरामिड। तो हम बोल सकते हैं 280 माइनस 60, अगर मैं उसको m सिंबलाइज करूं देन इट इज 220 kg। देन वेट मिल सकता है, देयरफॉर वेट जिसको w भी लिख सकते हैं या फोर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज mg। तो 220 into 9.8, तो करो 220 into 9.8, इट
इज 2156 ओके न्यूटन। अब जो भी परफॉर्मर है उसके दो लेग होंगे, दो ही होंगे ना, तो दोनों के ऊपर इतना फोर्स आया, हमें तो ईच के ऊपर चाहिए, देन फोर्स ऑन ईच लेग ऐसा बोल सकते हैं। Therefore, force on each thigh या each leg ऐसा बोल सकते हैं, each thigh bone is equal to 2156 divided by 2। कैलकुलेट कर देगा 1078 न्यूटन। ओके इतना फोर्स हुआ, इसको भी एफ की सिंबलाइज से कर दो या एफ डैश कर दो चलो। तो ये फोर्स हुआ, हमें लेंथ दे रखी है। व्हाट अबाउट द लेंथ? लेंथ ऑफ द थाई बोन इज 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 into 10⁻⁻⁴ मीटर। ओके तो क्रॉस सेक्शन एरिया मिल सकता है। और यहां पर बोन का यंग मॉड्यूलस, तो वहां पर गिवन होगा कि यंग मॉड्यूलस फॉर द बोन इज 9.4 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया कर लें, A is equal to pi r square 3.14 into r square करेंगे तो 4 into 10⁻², सॉरी सेंटीमीटर में तो -2 ही होगा हाँ, और यहाँ पर होगा मीटर स्क्वायर 10⁻⁴। ओके तो अब यहाँ पर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, देन इट इज 12.56 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए कि कंप्रेशन ऑफ द थाई बोन, मतलब डेल्टा एल हमें फाइंड करना है। तो बस एक फॉर्मूला यूज कर देंगे यंग्स मॉड्यूलस वाली, y is equal to FL upon A delta L। ओके देन डेल्टा L is equal to FL, लेकिन F डैश यूज करेंगे, तो डेल्टा L is equal to F डैश L upon y in। F डैश कितना और ईच के लिए 1078। What about the length? 0.5 Young's modulus 9.4 10⁻⁹ area 12.56 10⁻⁴। Then what about the compression? So 1078 into 2.5 divided by 9.4 and divided by 12.56, it is 4.565 10⁵ होगा, लेकिन ऊपर आएगा तो -5 मीटर। ओके इट इज 4.565 10⁻⁵ मीटर। अगर सेंटीमीटर करना है तो डेल्टा L इज इक्वल टू 4.565 10⁻² कर देंगे तो -3 सेंटीमीटर। कोई भी आंसर तुम कर सकते हो। अब फ्रैक्शनल चेंज अगर पूछा है तो भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। अब सेंटीमीटर यूज करो तो सेंटीमीटर, मीटर यूज करो तो दोनों की वैल्यू मीटर वाली चाहिए हमें। ओके तो सेंटीमीटर अगर यूज करें तो सेंटीमीटर में वैल्यू है 4.565 डिवाइडेड बाय, ये -3 तो होगा, और डिवाइडेड बाय 50, तो इट इज 0.091 और -3 और इंटू 100 -1 होगा, मतलब 0.0091%। ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज अगर पूछा है तो। ओके चलो वीडियो पॉज करके इतना लिख दो, कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट 9.4 देखो, जितने भी मैक्सिमम इसके जो भी न्यूमेरिकल है
वो बेस्ड ऑन यंग्स मॉड्यूलस। अगर यंग्स मॉड्यूलस का तुम्हें इक्वेशन याद है तो इजीली तुम सॉल्यूशन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ ऐसे है। अब 9.4 देखो। द स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subject to a shearing force. Shearing force मतलब parallel to the face. The 9 into 10 raised to 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. Lower edge जो है वो ऐसे फिक्स है फ्लोर के ऊपर. Then how much it will upper edge be displaced? जो upper edge कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब यहाँ पर shearing stress से रिलेटेड हमें shearing modulus यूज करना है। तो उसके ऊपर ही टेबल देखो, लीड एरिया, तो लीड का shear modulus है 5.6 10⁹. ओके, तो पहले इसका डेटा कर देते हैं। डेटा में लेंथ और ऐसे थिकनेस दे रखी है तो डायरेक्ट एरिया कर देते हैं। एरिया ऑफ एज ए बॉक्स जो दे रखा है वो एरिया ऑफ द स्लैब, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 10⁻⁻⁴ meter square. It is 5 into 10⁻⁻² meter square. ओके, ये मिल गया हमें एरिया। चलो, तब फोर्स हमें दे रहा है। फोर्स F is 9 into 10⁻⁴ न्यूटन, और इसका जो भी ऐसे शियर मॉड्यूलस है जिसको हम G से डिनोट करते हैं, एंड फॉर द लीड इज 5.6 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब डेल्टा x क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो हमारे पास इसके भी फॉर्मूला है वैसे। शियर मॉड्यूलस G इज इक्वल टू क्या है, F/A और डेल्टा x अपॉन L है ना। Therefore we can say FL upon A डेल्टा x। डेल्टा x पर चाहिए हमें, then it is FL upon GA। फोर्स कितना, 9 10⁻⁴। लेंथ 50 सेंटीमीटर की जगह पर मीटर में 0.5 डायरेक्ट यूज करते हैं हम। ओके, फिर G 5.6 10⁻⁹ और एरिया 5 into 10⁻⁻²। तो पहले पावर की कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 ऊपर जाएगा तो -7 प्लस 4 इट इज -3। चलो बाकी की कैलकुलेशन करते हैं। 9 into 0.5 divided by 5.6 divided by 5, it is 0.160 मीटर, तो 0.16 मिलीमीटर बोल सकते हैं, है ना। देन डेल्टा x इज इक्वल टू 0.16 मिलीमीटर। दोनों में से कोई भी आंसर फाइनलाइज होंगे, बट यूनिट कैसा है, यूनिट कंपल्सरी है। ओके, चलो 9.5 ऐसा एग्जाम्पल इस चैप्टर का लास्ट क्या है। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V upon V of water at the bottom of the ocean, given that bulk modulus for the water is 2.2 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और G की वैल्यू बोला है चूज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी ऐसे वाटर है, वाटर की ऐसे हाइट दे रखी है 3000 मीटर, तो नीचे जो वाटर है उसमें कंप्रेशन कितना आएगा, व्हाट अबाउट द कंप्रेशन ऑफ वाटर एट डेप्थ। तो हमें यहां पर डेप्थ H अगर हम कंसीडर करें इट इज 3000 मीटर, देन प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू डेप्थ हम कर सकते हैं। Therefore pressure
P इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा h rho g। h इज द हाइट, डेप्थ, रो डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? वाटर की डेंसिटी। कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर? अगर तुम 1 यूज करो तो यूनिट देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर नहीं चलेगा, हमें तो केजी पर मीटर क्यूब है। ऑल वैल्यू शुड बी इन MKS। देखो अगर सेंटीमीटर होता है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तब यहाँ पर हमें डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करना है, केजी पर मीटर क्यूब में हो जाएगा 1000। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कैलकुलेशन कर देंगे तो ये है 3000 इंटू 1000 और जी की वैल्यू 10 होगी। देन प्रेशर क्या होगा? 3 इंटू 3367 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल्क मॉड्यूलस फॉर द वाटर इज गिवन, क्या है? 2.2 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड आस्क अबाउट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V अपॉन V हमें पूछा है। तो फॉर्मूला है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस, B इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। ओके, चलो देन व्हाट अबाउट डेल्टा V अपॉन V? इट इज P अपॉन V। P क्या है? ये 3 और 10⁻⁷, तो 3 डिवाइडेड बाय 2.2 ही होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2.2 दैट इज 1.3636। तो 1.3636 इनटू ये 7 है, ये 9 है, ऊपर आएगा तो -2। ओके, अब अगर इसका परसेंटेज चेंज में कर दे देन डेल्टा V अपॉन V इंटू 100% करें, इंटू 100 करेंगे, ये तो कैंसिल, 1.36%। देन फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम इज 1.36% ऑफ द वाटर एट डेप्थ 3000 मीटर। सिर्फ 1.36% का ही कुछ वैल्यू चेंज आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट टाइम हम इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके।